welcome you all for this wonderful time of meeting with God, hearing the voice of God. దేవుని స్వరం వినే సమయం, దేవుని సన్నిధిని అనుభవించే సమయం. सो अंदर की स्वागत, सबको स्वागत करता हूँ कि आज का जो ये ब्रॉडकास्ट है जो है एक विशेष है, स्पेशल है कि मेरे हृदय में जो प्रभु ने जो रखा है उसको मैं शेयर करूँगा. और इट्स एक्चुअली सेविंग द sinners. So today I will talk about saving the sinners and how to preach the gospel, why we should preach the gospel. Okay, praise the Lord. Ashu, good morning. Praise the Lord. Welcome you Thank you all so the much. way from Visakhapatnam. We have a special guest today to worship the Ashu Rudrapati from Visakhapatnam. Today, so we'll have three languages: English, Hindi, and Telugu. So I welcome you all. First of all, I request people who are going to join, please share this broadcast with your friends so that others may be blessed. So welcome you, Ashu. Thank Go you, on to Anna. the Praise the Lord. Thank you so much. worship the Lord. Glory to God. Yes, it's time. Over to you. నిన్ను పూజించి భజించి స్తోత్రింతును, స్తుతి మనసారా అర్పింతును. నిన్ను పూజించి భజించి స్తోత్రింతును, స్తుతి మనసారా అర్పింతును. కష్టకాలమైన నష్ట సమయమైన నీదు నామమే గణపరతును. 1 2 1 2 నేను పూజించి భజించి స్తోత్రింతుము, స్తుతి మనసారా అర్పింతును. నేను పూజించి భజించి స్తోత్రింతును, స్తుతి మనసారా అర్పింతును. కష్టకాలమైన నష్ట సమయమైన నీదు నామమే గణపరతును. కష్టకాలమైన నష్ట సమయమైన నీదు నామమే గణపరతును. హల్లెలూయా హల్లెలూయా యేసునికే స్తోత్రములు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా యేసునికే స్తోత్రములు. నేను పూజించి భజించి స్తోత్రింతును, స్తుతి మనసారా అర్పింతును. స్తుతి మనసారా అర్పింతును. కష్టకాలమైన నష్ట సమయమైన యేసునామమే గణపరతును. కష్టకాలమైన నష్ట సమయమైన యేసునామమే గణపరతును. తల్లియు తండ్రియు నీవే, నా ఆదరణ కర్తవు నీవే. తల్లియు తండ్రియు నీవే, నా ఆదరణ కర్తవు నీవే. నరులందరూ నన్ను నిందించిన నీదు మహిమను చూపితివి. నరులందరూ నన్ను నిందించిన నీదు మహిమను చూపితివి. మహిళ సాక్షిగా నిలిపితివి.
హల్లెలూయా హల్లెలూయా యేసునికే స్తోత్రములు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా యేసునికే స్తోత్రములు. నేను పూజించి భజించి స్తోత్రింతును, స్తుతి మనసారా అర్పింతును. కష్టకాలమైన నష్ట సమయమైన నీదు నామమే గణపరతును. కష్టకాలమైన నష్ట సమయమైన నీదు నామమే గణపరతును. నా మటుకైతే బ్రతుకుట క్రీస్తే, చావైతే మరి లాభము. నా మటుకైతే బ్రతుకుట క్రీస్తే, చావైతే మరి లాభము. ఆత్మతోను సత్యముతో నీదు నామము ప్రకటింతును. ఆత్మతోను సత్యముతో నీదు నామము ప్రకటింతును. జీవితాంతము ప్రచురింతును. హల్లెలూయా హల్లెలూయా యేసునికే స్తోత్రములు. 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 హల్లెలూయా. అందరికీ తెలిసిన పాట, నీ చిత్తము నీ చేసేదా, నీ మార్గంలో నడిచేదా. ఈ పాట పడుకుని దేవుని మహింపరుద్దాం. Thank you, Jesus. ఆరాధన యేసునికే, ఆరాధన యేసునికే, ఆరాధన యేసునికే, ఆరాధన యేసునికే. నీ చిత్తమునే చేసేదా, నీ మార్గములోనే నడిచేదా, నీ సన్నిధిలోనే నిలిచేదా, నేను వెంబడించేదా. నీ చిత్తమునే చేసేదా, నీ మార్గములోనే నడిచేదా, నీ సన్నిధిలోనే నిలిచేదా, నేను వెంబడించేదా. ఆరాధన యేసునికే, ఆరాధన యేసునికే, ఆరాధన యేసునికే.
ఆరాధన యేసు నీకే. నీటిపైన నడచిన నీ అద్భుత పాదముల్ చూచుచూనే నడిచెదా అన్ని వేళలా. నీటిపైన నడచిన నీ అద్భుత పాదముల్ చూచుచూనే నడిచెదా అన్ని వేళలా. ఆరాధన యేసు నీకే. ఆరాధన యేసు నీకే. ఆరాధన యేసు నీకే. ఆరాధన యేసు నీకే. నీ చిత్తమునే చేసేదా, నీ మార్గములోనే నడిచేదా, నీ సన్నిధిలోనే నిలిచేదా, నిన్ను వెంబడించేదా. నీ చిత్తమునే చేసేదా, నీ మార్గములోనే నడిచేదా, నీ సన్నిధిలోనే నిలిచేదా, నిన్ను వెంబడించేదా. గాలి నీరు అగ్నియు నీ అద్భుత మాటకు లోబడుచూ ఉన్నవి అన్ని వేళలా. గాలి నీరు అగ్నియు నీ అద్భుత మాటకు లోబడుచూ ఉన్నవి అన్ని వేళలా. ఆరాధన యేసు నీకే. ఆరాధన యేసు నీకే. ఆరాధన యేసు నీకే. ఆరాధన యేసు నీకే. నీ చిత్తమునే చేసేదా, నీ మార్గములోనే నడిచేదా, నీ సన్నిధిలోనే నిలిచేదా, నిన్ను వెంబడించేదా. నీ చిత్తమునే చేసేదా, నీ మార్గములోనే నడిచేదా, నీ సన్నిధిలోనే నిలిచేదా, నిన్ను వెంబడించేదా. నిత్య ప్రేమతో నన్ను ప్రేమించెన్. నిత్య ప్రేమతో నన్ను ప్రేమించెన్.
తల్లి ప్రేమను మించినదే, లోక ప్రేమను మించినదే, తల్లి ప్రేమను మించినదే, లోక ప్రేమను మించినది. నిన్ను నేను ఎన్నడు విడువను, నిన్ను నేను ఎన్నడు విడువను, నిత్యము నీతోనే జీవింతు, సత్య సాక్షిగా జీవింతు, నిత్యము నీతోనే జీవింతు, సత్య సాక్షిగా జీవింతు. నిత్య రక్షణతో నన్ను రక్షించెన్, నిత్య రక్షణతో నన్ను రక్షించెన్, ఏకరక్షకుడు యేసే, లోకరక్షకుడు యేసే, ఏకరక్షకుడు యేసే, లోకరక్షకుడు యేసే. నీ చిత్తమును చేయుటకై, నీ పోలికగా ఉండుటకై, నీ చిత్తమును చేయుటకై, నీ పోలికగా ఉండుటకై, సర్వము నీకే అర్పింతు, పూర్ణానందముతో నీకే అర్పింతు, నా సర్వము నీకే అర్పింతు, పూర్ణానందంతో నీకే అర్పింతు. నిత్య ప్రేమతో నన్ను ప్రేమించెన్, నిత్య ప్రేమతో నన్ను ప్రేమించెన్, తల్లి ప్రేమను మించినది, లోక ప్రేమను మించినది, తల్లి ప్రేమను మించినది, లోక ప్రేమను మించినది. నిత్య రాజ్యములో నన్ను చేర్పించెన్, నిత్య రాజ్యములో నన్ను చేర్పించెన్, మేఘరథములపై రానయ్యున్నాడు, యేసు రాజుగా రానయ్యున్నాడు. ఆమేన్. మేఘరథములపై రానయ్యున్నాడు, యేసు రాజుగా రానయ్యున్నాడు. నిత్య ప్రేమతో నన్ను ప్రేమించెన్, నిత్య ప్రేమతో నన్ను ప్రేమించెన్, తల్లి ప్రేమను మించినది, లోక ప్రేమను మించినది, తల్లి ప్రేమను మించినది, లోక ప్రేమను మించినది.
ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా, Praise the Lord. హల్లెలూయా. Yes. Hallelujah. Praise the Thank you, Lord. Anna. Thank you so much. Glory to God. Thank you. Wonderful singing. Glory to God. Really, it's melodious and touching. Praise the Lord. Thank you very much, Asu, Thank you, for joining us thank you, this Anna. morning. Thank you so much. Thank you. In a spiritual maturity, परमेश्वर के धन्यवाद इस सुबह के समय के लिए। परमेश्वर परिपक्व लोगों से आज बात करेगा। हालेलुया। विश्वास में परिपक्व, मजबूत, जो प्रभु के साथ जुड़े, परमेश्वर के साथ चलते, उनसे प्रभु बात करेगा। యేసు ప్రభు విశ్వాసమందు పరిపక్వం చెందిన వారితో మాట్లాడే కొన్ని మాటలు ఈరోజు మనం వింటాం. We are going to hear the words of God. In His power, He will speak to us, people who are strengthened in the Lord, in the concern of the ministry. Hallelujah. So this morning, I just want to share what the Lord has put in my heart. Today, I will speak English, Hindi, and Telugu. So don't get disturbed when I speak sometimes in Telugu and English. So you don't get disturbed. आप कभी मैं तेलुगु में इंग्लिश में बात करूंगा तो हिंदी वाले मुझे समझ नहीं आता, ऐसा नहीं डिस्टर्ब, because there are people who want to hear in Telugu, Hindi and English also. This morning it's not my regular, like every Thursday evening we do Facebook live program regularly, but this morning, see, when sometimes the Lord speaks to a specific word to my heart, so I want to say this. Hallelujah. Glory to God. Today I am going to talk about saving the sinners. आज मैं बात करूंगा कि पापियों को बचाना, పాపులను రక్షించాలి అనే దాని గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుందాం. See, the main purpose of God coming into this world and the earth, there may be other things, there may be other plans God has, but the main purpose of God coming in this world on the earth is written in the book of Matthew chapter 1 verse 21. Before Jesus came into this world, before Jesus was born as a man in this world, the angel of God, who is called Gabriel, in heaven, he came to Mary Virgin and spoke to her. A son is going to be born from your womb. Then after that, she was having that, she became pregnant, and then after that, because she was engaged with Joseph, so before their marriage, before they would come together, so God, the angel of God, spoke to Joseph. Listen to me. I said this broadcast, I request you all in the beginning itself, because this is very important, especially for preachers, for pastors, and the believers. This is actually pastors' desk, people who have concern for others. So when the Lord's angel spoke to Joseph, Mary's husband, they were not married yet. Angel said to Joseph, Mary is going to give birth to a son, and his name is Jesus. This name came from heaven. No human, no man did not give this name. No country, no nation
no community, nobody gave this name from the world. This name did not proposed from the earth, but this name came from heaven. And Jesus means Savior. That's the angel said. Jesus means a Savior. He saves free people from their sins. I want to read this one. In the first chapter of Matthew, మత్తయి సమాచార పहले अध्याय 21 में, మత్తయి సువార్త 1వ అధ్యాయం 21వ వచనంలో చాలా స్పష్టంగా యేసు ప్రభు ఎవరు, అసలు ఏంటి యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి రావటంలో ఆయన ముఖ్య उद्देश्य ఏంటి, यीशु मसीह संसार में आने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, उसके बारे में लिखा है. तो I will read it in English. The purpose of Jesus Christ, why he came to earth, is written here. First chapter of Matthew, chapter 1, verse 21. I will read it for you. It says, and she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus. Jesus means, for he will save his people from their sins. Jesus, he was not yet come. यीशु मसीह अभी आए नहीं है. उससे पहले की बात है, वो स्वर्गदूत यूसुफ से, मरियम से बात कर रहे. यूसुफ से कहता है, मरियम के गर्भ में से एक बालक उत्पन्न होगा, उसका नाम యేసు రఖను. కన్య మరియ గర్భంలో నుండి మన కొరకు కుమారుడు జన్మించు, ఆయన పేరు యేసు. యేసు అనగా రక్షకుడు. See, the greatest and the most important and the only purpose of Jesus Christ coming to this world is only one purpose: to save people of all over the world. Hallelujah. This is the main purpose. Don't forget this one. If anybody asks why Jesus came into this world, why Jesus came into this world, glory to God. Why Jesus came into this world? So if anybody asks, I will immediately say, Jesus came to save me, to save the people. Hallelujah. Jesus came to save me, to save people. Jesus came to save you. No, wait a minute. 1 मिनट रुक जाए. यीशु मसीह किस लिए आया? तो कोई कहता नहीं, यीशु मसीह किसी को कुछ मदद करने आया, यीशु मसीह रोटी देने के लिए आया, यीशु मसीह जो रोने वालों को तसल्ली देने के लिए आया. He would do all those things, but the main purpose of Jesus Christ coming into this world on the earth is to save people, salvation to people, छुटकारा, उद्धार, मुक्ति. Hallelujah. So Jesus will save from what? किससे छुटकारा? इधर साफ साफ लिखा है, अपने लोगों को उनकी पापों से छुड़ाएगा. ध्यान से सुनिए. Listen to me carefully. తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి విడిపించడానికి ఆయన రక్షకుడుగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు. I want to say these things with many pastors, with believers, with churches, because sometimes people, churches, preachers, they miss the purpose of what the Lord's purpose. Hallelujah. परमेश्वर के उद्देश्य के बारे में लोग मिस कर चुके हैं. इसमें पास्टर्स भी है, इसमें प्रीचर्स भी है, इसमें कुछ चर्चेस भी है, इसमें कुछ बिलीवर्स भी है. यीशु मसीह का उद्देश्य क्या है इस संसार में आने का? बचाने का, उद्धार करने का,
पापों से उद्धार करने का। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आई प्रीच सैल्वेशन टू पीपल। आमीन। मैं छुटकारा का प्रचार करता हूं। मेरा उद्देश्य है somebody you see जो लोग यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करते हैं, जो सेवकाई में जो पास्टर्स है, जो सेवकाई में आए हैं, उसमें 5 परमेश्वर की सेवकाई में एक सेवकाई है इवेंजलिस्ट। इवेंजलिस्ट का मतलब है सुसमाचार प्रचार करने वाला, इस उद्धार के बारे में प्रचार करने वाला। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह आया, तो यीशु मसीह जब आया लोगों से मिलता रहा, और इसलिए आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे बाइबल, Jesus came and began to preach the word. If you read the Bible, New Testament very clearly, Jesus, before he would perform any miracle, before he would heal people, he would preach. Hallelujah. आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे प्रभु का वचन नया नियम में, प्रभु यीशु मसीह को चमत्कार करने से पहले, या किसी को चंगा करने से पहले, या कोई को निकालने से पहले, यीशु मसीह प्रचार करता था, प्रभु का वचन का प्रचार करता था, उपदेश करता था। हालेलुया, यस। यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालता है, यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करता है। God, Jesus, he does miracles, he heals people, he will drive out the demons, but he always used to preach the word. Hallelujah. యేసు ప్రభు ఆయన దయాలు వెలువడతాడు, ఆయన స్వస్థపరుస్తాడు, ఆయన ఆశ్చర్య కార్యములు చేస్తాడు. కానీ మనం గమనించినట్లయితే ఆయన వాక్యాన్ని బోధించేవాడు. Hallelujah, glory to God. Because he knows, क्योंकि वो जानता है, वो कहता है कि इसी मकसद के लिए आया, लोगों को बचाने के लिए आया। एक बार यीशु मसीह गए, तो एक जगह गए, तो लोग ढूंढते ढूंढते उसको आए। जब वो यीशु मसीह का वचन सुना, तो उन लोग है ना, कुछ लोग वो कहते, प्रभु जी आप यहीं रहो, आप यहीं रहो, हमारे साथ ही रहो। So people, they urged Jesus. When Jesus went there and people gathered, big crowd, they were listening to Jesus and he performed miracles. He began to heal the people. So those people, they begged Jesus to stay on, stay with them, stay with them. उन्हीं के साथ रहने के लिए लोगों ने यीशु मसीह को विनती किया। But you know what Jesus said? जब यीशु को उन्होंने रोका, when people urged Jesus to stay with them, do you know what the reply of Jesus? यीशु मसीह का जो है उसके उत्तर क्या मालूम है? Let us go to other cities also. For this purpose only I came. It is written in the book of Mark, Gospel of Mark, chapter 1, verse 38. I just want to read that one. It is very lovely. People who always, build boundaries. People who want Jesus only in the walls inside. Those who want Jesus only to a particular place. For them, this is the reply. I am talking to pastors. I am talking to some mature believers. I am talking to some churches. I don't know what you may think about me. I don't care. I am an evangelist. I preach the gospel. I am a pastor. I teach. I take care of the flock. Hallelujah. Yes. See, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं यीशु मसीह हमारे पास ही रहे। तो जब यीशु मसीह उधर गए, तो उन लोग देखा कि प्रभु यीशु आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, अच्छा वचन सुना रहे। तो वो कहते, प्रभु जी आप यहीं रुको, हमारे साथ ही रहो। लेकिन यीशु मसीह का जो उत्तर
पढ़ के मैं हैरान हो गया। देखो आप भी हैरान होंगे, आपने पढ़ा है इसको, लेकिन वो क्या कहता मालूम है? यीशु मसीह उनका रिप्लाई देता है, जो लोग यीशु को बांध के रखना चाहता है, एक ही जगह, एट पर्टिकुलर प्लेस, पीपल दोज हु वांट टू जीसस ओनली ऑन वन प्लेस, उनके लिए ये बहुत बड़ा आंसर है, यीशु मसीह ने खुद दिया है। मैं पढ़ता हूं मार्कुस चैप्टर 1 verse 38, first chapter of the Gospel of Mark, chapter 1, yes, first and 38. I'm going to read for you. Isn't it? Jesus said, when they found him, they said to him, everyone is looking for you. But he said to them, let us go into the next towns, that I may preach there also, because for this purpose I have come forth. Only in the book of Luke and other places is written. Jesus said, let us go to other cities, so that I may preach, so that I may preach salvation, I may save them. For this purpose only I came. Jesus said, यीशु मसीह एक जगह में आप बांध के नहीं रख सकते, वो पापियों को बचाने के लिए उसका हृदय तरसता है। This morning, dear pastor, our dear brothers and sisters who are mature, who has concern for others, save souls, पापियों को बचाए। मैं बताऊंगा कि what is the seriousness of hell if you don't save those people. जो लोगों को आप बचा नहीं सकते, उनकी हालत क्या होगा, कितने गंभीर है, मैं बताऊंगा। इसीलिए पापियों को बचाना है, यीशु मसीह का इस उद्धार के बारे में लोगों को प्रचार करना है। My heart, these days, become upset with some pastors and with some preachers. Oh my God, they are not preaching the gospel. They are preaching something else. मैं जब अब इन दिनों में कुछ पासवानों को, कुछ पास्टरों को और प्रचारकों को जब मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, वो यीशु मसीह का इस मकसद को, इस पर्पस को नहीं प्रचार कर रहे, कुछ और प्रचार कर रहे, which is not important. हेलो, यस, यीशु मसीह के उस उद्धार कहाँ है उस उद्धार के प्रचार? On Facebook, on social media, on TVs, and in the meetings, in the churches. आप ज्यादा क्या सुनते हैं? Repent and come to Jesus. क्या आप सुनते हैं ये बात? मन फिर आओ, यीशु को उद्धार करता स्वीकार करो, आप सुनते हैं? These things are being missed in some local churches. मन फिर आओ, उद्धार पाओ, यीशु को ग्रहण करो, बहुत कम लोग प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन क्या प्रचार कर रहे हैं? People who are supposed to preach the gospel, people who are supposed to preach salvation, people who are supposed to save people, they are preaching to those people who are already saved. जिन पापियों को बचाने के लिए सुसमाचार प्रचार करनी है, मन फिराने के अनुभव में लेके आनी है, उद्धार में लेके आना है, नरक से बचाने हैं। पापियों को बचाने की बजाय कुछ ऐसे अच्छा प्रचार करते थे ऐसे, लेकिन अब उन लोग बचे हुए लोगों को प्रचार करने में लगे हुए, उनका जी जान उसमें लगी हुई है। बचे हुए लोगों को आप परमेश्वर के बारे में आप प्रचार कर सकते हैं, कुछ सेवा कर सकते हैं, उनके लिए सब कुछ कर सकते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट दोस थिंग्स, लेकिन उन पापियों के बारे में क्या है आपके पास क्या है? पापियों को बचाने के लिए यीशु मसीह आया, उन पापियों को बचाने कौन बचा रहे? जो बच गया उसको और उसी में लगे हुए। My God, let your anointing come back upon those people who left the gospel. Oh मेरे प्रभु,
उनके ऊपर तेरा अभिषेक वापस आ जाए, जो सुसमाचार, उद्धार, मन फिराने का, अनंत जीवन का, पापों से बचने के जो प्रचार नहीं करते, उनके जीवन में तू कार्य कर यीशु मसीह। ओ लॉर्ड, आई प्रे दैट लेट योर 19 come back again on them, on the preachers, उन पास्टरों के, उन पासवानों के, उन प्रीचरों के ऊपर आ जाए तेरा अभिषेक प्रभु। प्रचार यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार करते करते छोड़ दिए और दूसरे बातें प्रचार करें। Oh my God, how sad it is. ఎంత విచారకరమైన విషయం. సువార్తను ప్రకటించకుండా, మారు మనసును ప్రకటించకుండా, నిత్య జీవనం ప్రకటించకుండా, నరకం నుండి తప్పింపవటం గురించి ప్రకటించకుండా, ఏంటి అవన్నీ వదిలేసి రక్షింపబడిన వారికి సేవ చేయడంలో సువార్త ప్రకటించవలసిన వారు ఉంటున్నారు. చాలా విచారకరమైన విషయం. ఓ మై గాడ్, దిస్ మార్నింగ్ with burden, with heavy heart, I am speaking these words. I am a man of God. I preach. I have decided not to be compromised. I have decided not to, associate with those people who don't preach the gospel. Of course, I love people. Yes, I love everyone. In fact, because Jesus commanded us to preach. My God. लेकिन आपको नहीं लगता, जो अभी सुन रहे ब्रॉडकास्ट में, आपको नहीं लगता कि बहुत सारे ऐसे पास्टर्स और प्रचारक और बहुत से ऐसे लोग कुछ चर्चेस में, कुछ मीटिंग्स में और कुछ ऐसे फेसबुक में, इधर उधर टीवी में ऐसा प्रचार कर, तो मन फिराओ, अनंत जीवन पाओ, यीशु मसीह को ग्रहण करो, यीशु मसीह सब कुछ है, वो आपको नरक से बचाएगा, ये बातें बहुत कम सुनने को मिलता। आपको नहीं लगता? आई एम आस्किंग यू, don't you sense these things? Yes, my God, we are in the last days, my dear friends. दोस्तों, हम अंतिम दिनों में हैं. These are expected. I was reading the book of 2 Peter chapter 2. मैं दूसरा పత్రిక పుస్తకం 2 అధ్యాయం పढ़ रहा था. రెండో పేతురు పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో చదువుతున్నాను. ఏంటంటే, ప్రజలలో ఆ రోజుల్లో అబద్ధ ప్రవక్తలు, అబద్ధ బోధకులు అన్నట్టు ఈ రోజు కూడా ఉన్నారంట. సో the second Peter, the book of 2 Peter chapter 2, from the beginning it says, so like in those days, like false prophets and false teachers, today also among you there are false prophets, false teachers. False prophets, false teachers, they don't have concern of salvation. तो झूठे बोल सकता है, झूठे शिक्षक जो है ना, उन लोग मन फिराने का, उद्धार पाने का, लोगों को और पापियों को बचाने के, उसमें कोई उनको चिंता नहीं होती. वो एक लक्षण है उनका. यस, इस सुबह प्रभु आपको कहता है, आप विश्वासी हैं, आप कोई भी हो, पापियों को बचाने के लिए प्रभु ने आपको जीवित रखा है. You are alive to save sinners. Hallelujah. यीशु मसीह का पर्पस यही है. The first book of 1 Timothy chapter 1 verse 15 says, Christ Jesus came into this world to save sinners. My God. यीशु मसीह किस लिए आया? पापियों को बचाने के लिए. My God. पापियों को प्रचार करो, वैसा की प्रचार करते हैं. अगर मैं 10 प्रचार करता हूं, 10 प्रचार के 10 प्रचार में मैं पापियों की प्रचार नहीं करूंगा, यीशु मसीह की प्रचार नहीं करूंगा, पैसा की प्रचार करूंगा, वो बेकार है. 10 प्रचारों में मैं केवल पैसा की हर प्रचार में पैसा की बात करूंगा, वो बेकार है. That's not my calling. वो मेरा बुलाहट नहीं है. ईश्वर का बुलाहट होगा, वो I don't care, I don't know. लेकिन I am concerned for souls. Hallelujah. Be careful. Be careful. यीशु मसीह कहाँ है? यीशु मसीह, अगर यीशु मसीह की जिक्र नहीं है, यीशु के उद्धार का जिक्र नहीं है, तो किस लिए है?
चर्च बिल्डिंग किस लिए है, लोगों की जमा किस लिए है, यीशु ही नहीं मिलता उधर, यीशु की बातें नहीं होती, किस लिए है? यस, इट इज वेरी डेंजरस फॉर पीपल। माय गॉड, यीशु मसीह सब कुछ है, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही आशीष देने वाला है, यीशु ही पापों की क्षमा करने वाला है। सेव सिनर्स। आप ऐसे एक बार दुनिया में देखो, करोड़ों लोग पापी है भी, करोड़ों लोग, सैकड़ों लोग, अनगिनत लोग उद्धार नहीं पाए। आपके घर में कितने लोग हैं? और भी है, सभी नहीं बचे। आपके शहर में कितने लोग हैं? आपके गांव में कितने लोग हैं? आपके देश में, पूरे वर्ल्ड में कितने ऐसे लोग हैं जो पापी कहलाते हैं? परमेश्वर यीशु के उद्धार का भी चकी नहीं है। There are number of millions of people who are not yet saved. They are called sinners. They don't know Jesus. They don't know God personally. They are not repented. When you look at the world, when you see crowds, mobs, they are not yet saved. You need to have concern. Save them. एक एक आत्मा को बचाना इतनी कीमती है प्रभु की दृष्टि में। लूका समाचार 15 अध्याय में प्रभु ने दृष्टांत बताया कि, अरे बाप रे, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, एक दृष्टांत बताया कि प्रभु यीशु मसीह एक आत्मा का जो वैल्यू क्या है, कीमत यीशु मसीह ने उधर बताया। लूका समाचार 15 उधर लिखता है, देखिए 15 अध्याय और उसका 7 पद। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। एक पापी बच जाए, एक पापी मन फिराए, इधर लिखा है कि एक मन फिराने वाला पापी, ऐसा लिखा है, वन सिनर, ऐसा, इट्स रिटन लाइक दैट, one sinner who gets repent. ఒక్క పాపి విషయమై పరలోకమందు ఎంతో ఆనందం। एक पापी, हेलो, आप ऐसे सोच रहे कि एक पापी कब ऐसा होता है? हाँ, इस मसीह ने इसलिए बहुत अच्छा वो दृष्टांत बताया कि 100 बेड थे, एक बेड खो गया। अरे जाना, एक बेड 99 है, पर प्रभु का हृदय ऐसा नहीं। Yes, the heart of the Lord Jesus is not like that. So it's only one sheep, let it go. No, प्रभु के हृदय ऐसा नहीं है। हर एक पापी एक एक करके, आप जितना मूल्य है प्रभु के दृष्टि में, आपके घर में और जितने नहीं बचे उनको भी प्रभु उतना ही चिंता से, उतना सी बोझ से उनके लिए इस दुनिया में आया। आप निराश इसमें इसलिए है क्योंकि आप बच गए, उन लोग अभी तक नहीं बचे। लेकिन प्रभु का मकसद इसलिए उनको जीवित रखने का यह है, वो बच जाए। हालेलुया, वो बच जाए। ध्यान से सुनिए, मैं आपको ना कुछ बातें बता रहा हूं कि आपका जीवन का मकसद आत्माओं को बचाना, इसलिए प्रभु रखता है। यस, बिजनेस करो, आशीष पाओ और पैसा कमाओ। यस, ये तो प्रभु आपको पैसा भी दे सकता है। और अच्छा मकाने बनाओ, अच्छी नौकरियां प्राप्त करो, प्रभु देगा। यस, गॉड कैन गिव यू एनीथिंग यू वांट। अगर आपको और भी चीजें चाहिए, यू वांट ऑल काइंड्स ऑफ ब्लेसिंग्स, सारे प्रकार का आशीष चाहिए, प्रभु देगा। वो सब जो है आत्माओं को बचाने के लिए इस्तेमाल करो। अगर प्रभु आज आपके पास हजारों रुपए है, कल लाखों रुपए आएंगे और बाद में आपको करोड़ों रुपए मिलेंगे, वो सब परमेश्वर की आत्माओं को बचाने के लिए आप इस्तेमाल करो। यस, बी रिच, इट्स नॉट सिंपल। धनवान रहो, वो कोई पाप नहीं है। यस, पाप नहीं हो, लेकिन आपकी वो स्थिति, धन संपन्नता का स्थिति, परमेश्वर के नाम से आत्माओं को बचाने के लिए आप इस्तेमाल करो। आपके समय आत्माओं को बचाने के लिए इस्तेमाल करो। आपकी धन दौलत, आपके पास जो कुछ भी टैलेंट है, सब कुछ प्रभु चाहता है कि आप आत्माओं को बचाएं। यस, सेव सिनर्स। मैं आपको बताता हूं, बाइबल में शुरुआत में प्रभु ना इन लोगों को नाश नहीं करना चाहता। जितने भी है अभी यीशु को नहीं जानते, पापी है, उनको नाश नहीं करना चाहता, उनको बचाना चाहता है। कहां है सुन रहे हमारे पास लोग, कहां है जिनको प्रभु ने बुलाया
इन पापियों को बचाने के लिए यीशु मसीह ने कहा सारे संसार में जाओ और सारी सृष्टि का सुसमाचार का प्रचार करो। यस, हालेलुया। सारी सृष्टि का, सारे देशों का, सारे जातियों का, भूमंडल पे जितने भी, सबको 28 अध्याय मत्ती समाचार में प्रभु ने कहा और उनको बताया, चेलों को, जाओ सारे संसार में जाओ। ये सुसमाचार, ये उद्धार का समाचार, उनको बचने के समाचार, दुनिया में जाकर सब देशों में सारे जातियों को प्रचार करो। और इसीलिए उसके चले सारे देशों में फैल गए। माय गॉड, कई लोग वहीं बैठना चाहते हैं, कुछ पास्टर्स वहीं बैठे, कुछ एवेंजलिस्ट जो सुसमाचार प्रचार के लिए प्रभु ने बुला है और उनको इतनी अभिषेक दिया है और उनको टैलेंट्स दिया है, सब कुछ दिया है, एक ही जगह बैठो, बैठे रहो, कहीं नहीं जाना, और बस अपनी एंजॉय करते रहो, अपने चर्च को देखते रहो और बस उन्हीं के साथ रहो और ये कहना आ जाओ इधर। लेकिन प्रभु बोलता है जाओ। यीशु मसीह ने क्या कहा मालूम है? गो। लेकिन इन लोग करें कम, ये जो शब्द है ना, यीशु मसीह को कहना है, आपको नहीं। यीशु मसीह ने कहा come unto me all ye that labor and are heavy laden and I will give you rest। बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह को कहना आओ। आपका काम क्या है? जाओ। यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों से, अपने चेलों से उनको क्या कहा? जाओ। कौन जा रहे? Do you see people going out, going to people? आज मेरा जो ये प्रचार है ना, बहुत लोगों को पसंद नहीं है, but this is the will of God, what I'm doing. It applies to me also. ये मेरे लिए भी, मुझे भी जाना है, समाचार प्रचार करना है, यस, और पापियों को बचाना है। एक ही जगह यीशु मसीह नहीं रहना चाहता, नहीं। I'm saying this, एक ही जगह यीशु मसीह नहीं रहना चाहता। आप बांध के ना रखो उसको, और वो रहेंगे नहीं। यीशु मसीह ने कहा ना, मैंने अभी पढ़ाया था आपको मार्कुस समाचार पहले अध्याय 38 पद में, कहते हैं प्रभु जी रुको। यीशु मसीह कहता नहीं, और दूसरे शहरों में भी, गांव में भी जाना है, इसी मकसद के लिए मैं आया हूं। यीशु मसीह जाएगा, आप नहीं जाएगा तो और कोई और किसी को भेज देगा, जाएगा। लेकिन आप कहता आप वहीं बैठो, आ जाओ, आप लाड साहब है, वहीं बैठो कि इधर आ जाए। परमेश्वर चाहता है कि आप जाओ, आत्माओं को बचाओ, सुसमाचार प्रचार करो, पापियों को बचाओ। बहुत साल पहले प्रभु ने एक बार मुझे दर्शन दिया, मैंने कई बार बोला था मैं चर्च में अपने, कि वो दर्शन क्या है कि एक नदी जा रही है, बहुत एक नदी जा रही है, वो नदी सा है, लेकिन मैं इधर हरियाणा में जहाँ रहता हूँ, करनाल में जब आप जाते हैं इधर एक क्या बहुत बड़ा नहर है, और दोनों जॉइंट अगल बगल में दो नहर। ये बहुत पहले जब पहली बार गया तो देखा पानी इतना प्रवाह, पंजाब से आता है, इतनी प्रवाह, इतनी तेज से स्पीड, वेरी स्पीडली वाटर वाज फ्लोइंग, और वो पानी चल रहा है। मैंने जब देखा कि अरे बाप रे, अगर बाई चांस कोई उसमें गिर गया, बचाने का कोई उम्मीद नहीं, बचाने का कोई हिम्मत भी नहीं रख सकता, और बड़ा नहर है। उसी प्रकार एक नदी देखा मैंने, और उस नदी में पानी की जगह आग है। यस, मैंने देखा, मैं प्रेयर कर रहा था, देखा तो आंख खोल के भी देखा, हुए दिख रहा है, और उस पानी की जगह आग है, और उसमें लोगों को डाल रहे। मैं भी और भी लोग खड़े देख रहे, जैसा कि बाढ़ आता है, साइड में खड़े होकर देखते हैं, तो देख रहे, और लोगों को वो रो रहे हैं, धक्के से उनको पकड़ के उनके अंदर डाल रहे हैं। ओह माय गॉड, आप कल्पना करो, पानी की जगह आग है, उसमें लोगों को डाल रहे, वो चिल्ला रहे, और वो उसमें डलवाना नहीं चाहते और चिल्ला रहे, लेकिन धक्के से उनको डाल रहे, बाय फोर्स
people, they are throwing them, some people, in that river. Instead of water, it is fire there. Fire was like water, and some people were being thrown in that river, and they were crying and shouting. They don't want to get in that river because it was fire, but people by force they are throwing them. My God, it was so hellish. My God, it was so hellish. बड़ा भयानक है. So मैं भी आंख बंद करके देख रहा हूँ, ऐसा कई लोग देख रहे किनारे खड़े होके. So एक आवाज सुना, उनको बचाओ, उनको बचाओ. तो मेरे साथ मैंने भी देखा और कुछ लोग और भी देख रहे थे, लेकिन मैंने देखा प्रभु जी कैसे बचाएंगे उसको, वो तो आ गए. I tell you, प्रभु ने उस दिन के बाद में सुसमाचार का मकसद और यीशु मसीह पापियों को बचाने का जो यीशु मसीह जो सोचता है वो कितना कीमत है, उस दिन मुझे दोबारा प्रभु ने याद दिलाया. इसलिए मैं जब दूसरों को देखता हूं कि सुसमाचार प्रचार नहीं करते, पापियों को बचाते नहीं है, मुझे ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं उनके लिए. और कोई कर सकता है और कोई बातें कर रहे हो और ठीक है, लेकिन पापियों को बचाओ. नरक बहुत भयानक है और वो थोड़े दिन का नहीं है. मैं आपको एक बात बताता हूं कि शुरुआत में जो है, जब से संसार बनी है, परमेश्वर जो है ना एक ही बार पूरे संसार के लोगों को क्या कहता है कि दंड दिया, सबको मार दिया एक ही बार. नूह के टाइम जब पाप बढ़ गया पूरे संसार में, पूरे भूमंडल पे पाप बढ़ गया, तो प्रभु के सामने कोई ऑप्शन नहीं मिला, तो उनको नाश करे. इतनी पाप बढ़ गई थी, कोई एक दूसरे का और वर्णन नहीं कर सकते. और प्रभु इतने दुखित हो गया, तो प्रभु ने सोचा कि मैं सबको नाश करूंगा. नूह के टाइम, उससे पहले भी नहीं हुआ, उसके बाद भी नहीं हुआ. पहली बार और एक ही बार ऐसा हुआ. अभी तक पूरे वर्ल्ड को जो है, for the entire world, God has punished people. Only once it happened. Before it was not there before, and after that till now, till today, it has not happened. अभी तक ऐसा नहीं हुआ, उससे पहले भी नहीं हुआ. नूह के टाइम में जब प्रभु ने देखा सबको मारने का, और जब ओनली नूह और उसकी फैमिली बच गई, बाकी सबको जल प्रलय से पूरे भूमंडल के ऊपर जितने भी थे सब, और मनुष्यों के साथ साथ सब कुछ खत्म हो गया. जीव जंतु भी सब खत्म हो गया. When God saw this happen, सब लोग मर गए, तो प्रभु ने देखा कि ठीक नहीं, मतलब सब लोगों को मारना ठीक नहीं है, सब लोग मरना ठीक नहीं है, सारे मर जाना ठीक नहीं है. तो उस दिन प्रभु ने एक कसम खाई, आज के बाद दोबारा मैं जल प्रलय से लोगों को नहीं मारूंगा. लेकिन बाद में अलग अलग लोग, अलग अलग प्रांत के लोग, अलग अलग जगहों में पाप, उससे भी बड़ा पाप किए, उनको प्रभु ने छोड़ा नहीं, लेकिन पूरे संसार को नहीं मारने का मन आया उसका. अभी तक पूरे संसार को मारने का. सोदम गोमोरा इतनी भयानक पापों में थे, तो उन शहरों को, उन दोनों बड़े बड़े शहरों को, सोदम और गोमोरा, उन शहरों को प्रभु ने आग से नाश किया. God had punished the people of big cities called Sodom and Gomorrah because of their sin. Because of their sin, God has punished them, but God did not punish the entire world. जगह जगह इधर उधर जो पाप हो गया, तो प्रभु ने उनको नाश किया, उनको पनिश किया, लेकिन सारे संसार को मारने का मन नहीं. इसलिए मैं बोल रहा हूं, प्रभु का मन नहीं है, एक विश्वासी को बचाना चाहता है. God has no heart to punish people. God has no heart to put people to death. God has no heart to send people to hell. आपको इसलिए जीवित रखा है, पापियों को बचाने के लिए जीवित इसलिए रखा, पापियों को बचाने के लिए. यीशु मसीह आया इसलिए है कि पापियों को बचाए. कहां है इन पापी लोग? आपके घर में भी है, आपके आसपास है, आपकी कॉलोनी में है,
अपनी नगर में है, अपने शहर में है, अपने गांव में है, पूरे देश में है, हर प्रांत में है, पूरे वर्ल्ड में है। आप सोच रहे हैं मरने का इंतजार कर रहे हैं, आप विश्वासी है फिर भी मरने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ बस मेरी उम्र हो रही है, मैं बुजुर्ग हो रहा हूँ, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरा वो करना है, बिल भरना है, बच्चों को पढ़ाना है, उनको एडमिशन दिलाना है, ये है। अरे भाई वो सब प्रभु आपके इंतजाम करेगा साथ साथ, ये तो जिंदगी भर रहेगा आपको, लेकिन साथ साथ परमेश्वर चाहता है कि पापियों को बचाए। यस, पापियों को बचाए। कई पास्टर से हो चुका है, कई एवेंजलिस्ट, जो एवेंजलिस्ट मतलब तो सुसमाचार प्रचार करते हैं, वो ये हो चुके हैं और कुछ और प्रचार करते हैं, पापियों को बचाओ, है ना, लेकिन बचे हुए लोगों को बचाओ यीशु मसीह ने नहीं कहा। सुसमाचार प्रचार करने वालों को, बचे हुओं की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने कुछ लोगों को नियुक्त किया है। मेन जो है उनको पास्टर, पासवान उसको बोलते हैं कि चरवाहा। कुछ लोगों का अभिषेक देता है प्रभु, और भी उनकी जीवन में प्रभु उनके जरिए और उनकी सेवा करे। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सुसमाचार प्रचार करने के लिए जिनको बुलाया, लोग कहां हैं, कौन प्रचार कर रहे हैं? रिमेंबर, आप जब प्रचार सुनते हैं इन बातों को ध्यान दिए। इस पॉडकास्ट को शेयर करो ताकि और पास्टर लोग भी और भी विश्वासी लोग भी इसको सुने। यस, सुसमाचार, गॉस्पेल, गुड न्यूज, सैल्वेशन, उद्धार, मुक्ति, मन फिराव, इन बातों की प्रचार करेंगे, लोग बच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं बता रहा हूं, अगर आप आत्माओं को नहीं बचाएंगे, आप सोचते मेरे भाई का नौकरी मिल गया, मेरी मम्मी ठीक हो गया, ठीक है, इन्हीं बातों से अगर तृप्त रहेंगे, अगर वो मन फिर नहीं आएंगे, आपका रिश्ता तो केवल इसी दुनिया तक है। आपने उनको कुछ नहीं दिया। माँ बाप है ना, अपने बच्चों को बहुत पैसा देते, अच्छी स्कूल में पढ़ाते, नौकरियां दिलाते, शादी कराते, उनको सेटल करते, मकान बना के देते हैं, और चाहिए तो और भी जो कुछ लोग, तो दुनिया के लोग घूस दे के अपने बच्चों को नौकरियां दिला के उनको सेटल करते हैं। आज ठीक है, लेकिन आपने कुछ नहीं दिया। अगर उन लोग उद्धार नहीं पाए, इफ दे आर नॉट रिपेंटेड, इफ दे आर नॉट सेव्ड, आपने उनको कुछ नहीं दिया। यू हैव नॉट गिवन देम एनीथिंग। आपने कुछ नहीं दिया, आपने उद्धार नहीं दिया तो कुछ नहीं दिया। Yes. If you are not saved, you have not given anything. This is what. आप तो बहुत अपने बच्चों को पैसा दे सकते हैं। अरे आप क्या देना है, आप तो दे दिया, अच्छी बात है, लेकिन जो गरीब से गरीब भी, जिनके माँ बाप नहीं है, आज उन लोग मिलियनियर्स भी है, करोड़पति बन गए, अरबों करोड़पति बन गए, ऐसे बहुत से लोग हैं। आपने क्या, आप माँ बाप है इसलिए दिया है। आप अगर नहीं दिया तो भी अपने आप को कमा सकता। कई ऐसे लोग हैं, बट व्हाट यू नीड टू गिव इज प्रीच द गॉस्पेल, सेव देम, उनको उद्धार दो, उनको मन फिराव के अनुभव में लेके आओ, उनको उस नरक से बचाओ। आपको बचाना है। यीशु मसीह स्वर्ग से उतर कर नहीं आएगा। Why God had chosen pastors? क्यों परमेश्वर ने पासवानों को, प्रचारकों को चुना? यीशु, अभी प्रभु खुद नहीं आता धरती पर उनको बचाने के लिए, वो काम करता है इनके जरिए, आपके जरिए वो काम करता है। आपकी बेटा, आपकी बेटी, आपकी बहू, घर में आपकी माँ बाप, आपके और भी लोग हैं जो घर में उनको उद्धार नहीं। मैं घरों में जाता हूँ, कुछ लोग बच गए, कुछ लोग नहीं बचे, तो आपको कंसर्न ये होना चाहिए उन लोग भी आ जाए। उसके लिए आप अपने प्रयास करने, क्या प्रयास करना है? प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। आपके बाप बच्चे, आपके बेटा बेटी बच्चे, आपके दामाद बच्चे, आपके रिश्तेदार बच्चे, जो भी है वो लोग बच्चे आपके जरिए। हालेलुया। कैसे बचेंगे? यीशु मसीह आज है ना, यीशु मसीह इंडिया में नहीं आया, वो सिर्फ इजराइल में घूमते थे। यीशु मसीह और कोई जगह में नहीं गया। कौन आया इंडिया में? उसकी चेला आया था, उसकी चेले के जरिए प्रभु ने कार्य किया, इसलिए हम आज बच गए। यीशु मसीह धरती पर उसी प्रकार जैसे वो घूमते थे ऐसा नहीं आएगा। वो उसकी आत्मा आपके जरिए कार्य करेगा, परमेश्वर कार्य करेगा। आपको प्रचार करना है, आपको लोगों को बताना है, आपको लोगों से शेयर करनी है।
Yes, you need to preach. You need to share your testimony. आपको अपनी गवाही बताना. You need to share the word. You need to preach the gospel. आपको, yes, you need to preach the gospel. आज लोग सोचते हैं भाई हमें सब कुछ है, हमारे पास सब भी है, सब कुछ है. आप भैया एक दिन आएगा. Our day is coming where you need to depart from this world. इस संसार में से आपका जीवन समाप्त होगा. Why I am happy? Because इस दुनिया में कितने भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे घर में है, दुनिया में कहीं भी जाओ प्रॉब्लम्स हो, in spite of all these things, even though I have a lot of problems, why I am the joyous person in the world is because I am saved. I am saved from hell. I am saved from sin. I am saved from demons. I am saved from devil. I am saved from hellfire. I am saved. मैं बच गया हूँ, मैं उद्धार पाया हूँ, मन फिर आया हूँ. यस, नरक से बच गया हूँ. अब मैं मरने के बाद नरक में, अधोलोक में, पाताल लोक में नहीं जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा. यही है मेरे आनंद का कारण. वाव. In between, God can give me money. God can give me blessings. He heals me. He can give anything I want. But the more important thing is I am healed. Hallelujah. मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ. उद्धार कैसा है कि आपका जान बच गया, लेकिन चोट अभी है. अभी उदाहरण के लिए मान लो आपको बड़ा बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया किसी का, और उस एक्सीडेंट में पैर टूट गया, हाथ टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर हो गया, सिर पे चोट लगी है और खून हो गया, इधर भी घाव है, इधर कट गया, रगड़ गया, पता नहीं क्या है. शरीर में सारे जो है ना जख्म है, लेकिन जान बच गया. डॉक्टर कहता है जान बच गई, ये तो ठीक हो जाएंगे. ये जो फ्रैक्चर हो गया ठीक हो जाएंगे, हड्डी टूट गया तो ठीक हो जाएगा, ये जख्म ठीक हो जाएगा, आपका ये सब ठीक हो जाएगा. अगर एक्सीडेंट में जान गया, इफ यू लूज योर सोल, अगर जान गया है, छोटे भी, आप छोटों के बारे में चिंता कर रहे थे, अरे मेरा चोट लग गया, इसको ठीक करो पहले. अरे जान ही नहीं है चोट क्या कर. जो मुर्दा जो मर गया है उसका कोई और ऑपरेशन करेगा क्या? मर गया तो मर गया, हड्डी का ऑपरेशन करेगा, जख्म का कोई दवाई देगा. सेम उसी तरह उद्धार. लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से सुनो. उद्धार, salvation is उद्धार वो है बचना. हालेलुया. ये जख्म है, सारे बाकी प्रॉब्लम्स है, जैसा घर में प्रॉब्लम है, बेटा का प्रॉब्लम है, पैसा का प्रॉब्लम है, आर्थिक तंगी हो, ये सब जख्म जैसा है. जब जान बच गया, प्रभु उसका भी उपचार करेगा. हालेलुया. गुड समारिटन, यू नो, वो अच्छे समरी के बारे में यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया. एक आदमी था, यरीको से यरूशलेम जा रहा था, मुसाफिर, और डाकुओं ने उसको मारा पीटा, अधमरा छोड़ दिया. अगर वो और कुछ देर तक रहता तो वो मर जाता. लेकिन कोई एक याजक आया, पुजारी टाइप का, वो देख के चला गया. एक लेवी आया, वो भी देख के चला गया. लेकिन एक ऐसा सज्जन आया, ये तो मर रहा है, थोड़ी देर में मर जाए, इसको जान निकल जाएगा इसका. तो उसने क्या किया, अपनी उस साधन पर उसको लिटा के लेके आया, और जहां उसको उपचार कर सकते, जैसे हॉस्पिटल जैसा, उधर ले गए और उसकी उपचार कराया. ध्यान से सुनिए. और उसका जान बच गई. अब वो आदमी कहता है इसका जान बच गई है, और इसकी और भी है जो मारा, क्योंकि लोगों ने, डाकुओं ने, जो चोरों ने मारा और जख्म हो गए, इसको और ये सब ठीक कराओ, मैं दोबारा आऊंगा और जो कुछ भी आप खर्च करेंगे वो सब में चुकाऊंगा. उद्धार वो है जान बचना पापों से, नरक से. मैं आपको बताऊं, प्रभु छोड़ेगा नहीं. यीशु मसीह जितना वो प्रेमी है, उतना वो दंड देने के भी हृदय रखता है. दूसरा पतरस की पुस्तक 2 अध्याय में लिखा है, वो स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा, किसी को क्यों छोड़ेगा. लिखा है वो किसी को नहीं छोड़ेगा, झूठे भविष्यवक्ताओं को नहीं छोड़ेगा, झूठे शिक्षकों को नहीं छोड़ेगा, और पापियों को नहीं छोड़ेगा. इधर लिखा है दूसरे उसमें मैं पढ़ता हूं, यू नो, God though he is love, but he is capable to punish those false prophets, false teachers, everyone who is not saved. जो बचे नहीं, मन फिर ना आया, उद्धार नहीं आया, उनको दंड देने के वो सक्षम हैं.
और वो दंड देगा। मैं आपको ना एक वचन पढ़ता हूं, जूड, द बुक ऑफ जूड, वर्स 7, इधर लिखा है 7 पद में, यहूदा की पत्र में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है 7वां वचन में, देखिए, जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान ये विचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में, अनंत दंड, इन्फिनिट पनिशमेंट, फियर, डर जाओ, वो दंड मिलेगा अगर मन फिर नहीं आएंगे तो उद्धार नहीं पाएंगे। अनंत दंड, अनंत आग लिखा, अनंत दंड में पढ़कर दृष्टांत ठहरे हैं। नहीं छोड़ता प्रभु। अगर मन फिर नहीं आया, उद्धार नहीं आया, आप अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अच्छे महल में रह रहे हैं, या आप गरीब हैं, खाना नहीं, मैं गरीब था इसलिए मैं उद्धार नहीं पाया, ये भी नहीं, गरीब हो धनवान हो, पैसा हो या ना हो, कैसे भी रखो, उद्धार पाना जरूरी है। और ये उद्धार में लोगों को आप दुनिया के लोगों को देते, उनको कौन लेके आएगा? आपका काम है, सेव सिनर्स, पापियों को बचाओ। नहीं छोड़ता प्रभु। एक और बात मैं आपको पढ़ा के सुनाता हूँ, दूसरा पतरस और उसका दूसरे अध्याय, इधर देखिए, दूसरे अध्याय में कहता है वो नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता। आपको भी अगर आप उद्धार नहीं पाए ना, तो people who are listening to me, if you are not saved, you are not repented, God will not leave you, he will punish you for eternity. But this is the day of salvation. यही है उद्धार का दिन। Don't be deviated, don't be attracted to the world's views. दुनिया की बातों से आप आकर्षित ना हो, प्रभु की आवाज को सुनो। आप प्रभु के इस वचन को अनदेखा करेंगे, आप नरक से नहीं बच सकते। इधर लिखा है, मैं पढ़ता हूं, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता है, और उसी प्रकार तुम में से भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिपा छिपा कर करेंगे। प्रभु नहीं छोड़ता और कहता है, और उस स्वामी का जिससे उसने मोल लिया है इनकार करेंगे। और अगर इनकार करेंगे तो ऐसा ही होगा। और कहता, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। अपने आप को शीघ्र में विनाश में डालेंगे, अपने आप को। पीपुल who are not being saved, जो लोग उद्धार नहीं पाते, people who are not saved, they are putting themselves in the punishment, in the hell fire, वो नरक, 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 अनंत आग, उधर कीड़ा नहीं मरता, मतलब आपका आत्मा नहीं मरता, सताव होगी, सताव होगी, सताव से। और बाद में लिखा, टाइम नहीं इतना, इसलिए आपको उद्धार पाना, इसलिए आपको लोगों को बचाना, इसलिए for this reason you need to save sinners. పాపులను రక్షించాలి, పాపులను రక్షించాలి, సువార్త ప్రకటించాలి, మారు మనస్సును ప్రకటించాలి, నిత్య జీవనం ప్రకటించాలి, నరకమును గురించి ప్రకటించాలి, నరకం నుంచి రక్షింపబడడానికి గురించి ప్రకటించాలి, యేసు ప్రభు పాపమును క్షమిస్తాడనే దాని గురించి ప్రకటించాలి. yes, you need to preach how to be saved from sin, कैसे पाप से बचेगा उसके बारे में आपने प्रचार करना, लोगों को बताना। यीशु मसीह भीड़ को भी प्रचार करता था, लेकिन लोगों को एक एक करके भी प्रचार करता था। अगर कोई अकेला मिलता उसको भी प्रचार करता। आपको मालूम है, प्रभु का वचन लिखा है, यीशु मसीह जहां भी जाता भीड़ का भीड़ होती थी, हजारों लोग। अरे आज का टाइम में हजारों लोग इकट्ठा होना बड़ी बात नहीं है। मैं 2000 साल पहले की बात कर रहा हूं, जब हजारों लोग इकट्ठे होते थे, भीड़ को प्रभु यीशु मसीह प्रचार करता। लेकिन जब यीशु मसीह कोई मिलता है, एक दिन वो आ रहे थे, एक कुएं के पास बैठा, तो एक लेडीज मिला, सामरिया स्त्री, उससे ये बातें कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह उसके पाप के बारे में, कैसे बचने के बारे में बता रहे। आपको भी जो है ना, अकेला भी कोई मिलता है, उनको प्रभु के बारे में बताना, इस उद्धार के बारे में बताना। At the same time, you need to preach the gospel with groups, with crowds, also with individuals. Some people they think, I will preach only to crowds. Are you greater than Jesus?
Do you think yourself? Are you greater preacher than Jesus? क्या आप यीशु मसीह से बड़ा है? Jesus used to preach to crowds, hallelujah, to thousands. आज के जमाने में अगर उसको तुलना करेंगे, big millions of people, बड़े बड़े सभाओं को वो यीशु मसीह प्रचार करता था, लेकिन वो अगर कोई अकेला भी मिलता है उसके साथ भी बैठ के प्रचार करता था. Many people now they have got, oh देखो हमारा crowd, it's good to preach to crowds. दुनिया में अरबों करोड़ लोग हैं, उनको प्रचार करना, 1-1 लाख करोड़ को प्रचार करना, 3-3 लाख करोड़ को प्रचार करना, ये भी बहुत अच्छा है, लोग सुनेंगे. लेकिन मैं इतने करोड़ को प्रचार करता हूं, एक आदमी अगर कोई मिलता है उसको प्रचार नहीं करता. नहीं, यू नीड, अगर कोई मिलता है प्रचार करो. मैं ऐसा ही करता हूं. हालेलुया. यस, आई प्रीच द गॉस्पेल. यू नीड टू प्रीच द गॉस्पेल. सेव सिनर्स. पापियों को जो है ना, आपने बचाना है, आपका दायित्व है. I see something missing. That's why with heavy heart I am sharing these things. Yes, among the pastors, among the evangelists, they are not preaching the gospel. They are not sharing the gospel. They are sharing something else which they are not assigned by God. Yes, जो जिनको प्रभु ने सुसमाचार प्रचार करने के लिए बोले, वो नहीं. और अच्छे प्रचार. एक समय था, once upon a time they used to preach the gospel, they used to preach, they used to save souls, but they want to save saved souls. लेकिन अब जो है, जो बच्चे हुए लोगों को बचाना चाहता, बच्चे हुए लोगों को बचाना आपका काम नहीं है. Yes, I preach. You know the Paul's ambition in the book of Romans, what he says, I don't build on others. Hallelujah. मैं दूसरों के जगह के ऊपर मैंने काम करता हूं, मैं नई जगह में जाता हूं. That is the challenge today for preachers, for believers. वही है चैलेंज आज बहुत सारे प्रचारकों को, पास्टरों का और अच्छे विश्वासियों को, जो प्रचार यीशु मसीह का उद्धार के बारे में नहीं प्रचार करता है. हिम्मत है तो आप जाए, नहीं गो unto unreached people. उन लोगों के पास जाओ जो यीशु को नहीं जानते, यीशु को पहचानते नहीं, यीशु को ग्रहण नहीं किया, उनके पास जाओ, उनको इकट्ठा करो, उनसे प्रचार करो, उनको सुसमाचार प्रचार करो. कुछ लोग बोलते हैं, मैंने सुना है कि वो क्यों इधर आते हैं, क्योंकि उनके पास्टर के पास कुछ नहीं था. अरे तेरे पास है क्या है तेरे पास? What do you have? If anybody has Jesus, it is Jesus who is doing. Hallelujah. Yes, Jesus can do anything. Hallelujah. Yes, यीशु मसीह आपके लिए कुछ भी कर सकता है. आपका काम यह है, पापियों को बचाए. मैं रोज प्रार्थना करता हूँ अपनी मोहल्ले के लिए, अपनी जब जाता हूँ, जहाँ भी बैठता हूँ, लोगों से, ये लोग प्रभु को जाने. मैं क्यों लोगों से मिलता हूँ? कि मेरे जरिए ये प्रभु को जाने, ये आत्माएं बचे, एक पापी उद्धार पाए, स्वर्ग में आनंद, स्वर्ग में फंक्शन. One soul you get saved, there is function of joy of, in heaven before the angels. That's what Jesus said. आपको इसकी बात चिंता नहीं है. हमेशा दुनिया के इधर के उधर के, वो है, ये है, इसी के बारे में जब लोग आते हैं प्रार्थना बात करते हैं, हमेशा इधर उधर की बातें करेंगे. लेकिन कुछ पास्टर्स, कुछ इवेंजलिस्ट, कुछ विश्वासी लोग ये भी नहीं बात करते. हमने यीशु मसीह के बारे में बात किया, मैं प्रचार किया, मैं उनको बचाया. You need to preach the gospel. Gospel is the priority of my life. सुसमाचार मेरी प्राथमिकता है, सुवार्ता నా ప్రాథమికత. Yes, సువార్త ప్రకటించడం. Paul says, though he was a pastor, Paul says, "Woe to me if I don't preach the gospel." पौलुस कहता है, हाय मुझ पर अगर मैं सुसमाचार प्रचार नहीं करता. मैं पूछता हूं, where are those pastors, where are those preachers who used to preach the gospel? Hallelujah. Until your last day of your life in this world, you need to preach the gospel. आपके आखिरी दिन तक सुसमाचार प्रचार करना है. हालेलुया.
I know a man called T.L. Osborne from America. He was a great gospel preacher. He goes to the nations, heal the sick, बीमारों को चंगा करता है, आश्चर्य कर्म होता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है, और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते, उनके जहां भी जाते हैं सभाओं में लोगों को यीशु के नाम में चंगा करते, कैंसर बीमारियां ठीक हो जाते हैं, जो लोग जो चल नहीं पाते चलते हैं, यहाँ तक मुर्दे भी जिंदे हो गए, कैंसर ठीक हो गए। मैंने एक आदमी को देखा कि उनकी सभा में कि तमिलनाडु में वो बहुत ही कोड़ी था, बहुत ज्यादा, लेकिन वो ठीक हो गया, अच्छा बाजार है। तो उनकी मरने से पहले एक बार वो आंध्रा में गया तो मैं भी मिला, हाथ मिलाया उनसे, तो मैं देखना चाहता था उनको, क्योंकि मैं पढ़ता था उनके बारे में। सुनिए, बहुत सालों पहले वो इंडिया में आया, लखनऊ साइड में आया और तमिलनाडु साइड में गया, सुसमाचार। उनको हिंदी नहीं आता, ओनली इंग्लिश में बोलता था, उनको तमिल नहीं आता, इंग्लिश में बोल सकता था। नो, दिस मैन, gospel preacher called T.L. Osborne, he used to go to the nations, he used to challenge people. Hallelujah. यीशु मसीह का समाचार प्रचार करता, बीमार है तो उनको चंगा करता यीशु के नाम में, और आश्चर्य कर्म में होते। ओह माय गॉड, कितने ऐसे लोग हैं बच गए, उद्धार पाए, छुटकारा पाए, चंगाई प्राप्त किए, आश्चर्य कर्म हुए। एक जगह में वो गया, युगांडा शायद, युगांडा अफ्रीकन नेशन। तो जब वो गया तो मीटिंग खत्म हो गया, भीड़ आई थी, वो जा रहा था गाड़ी में, तो लोग लेके जा रहे थे कि रास्ते में एक ऐसा आदमी जो चल नहीं पा रहा था अपने पैरों से, जैसा ऐसे ऐसे चलता वो जा रहा अपने पेट ऐसे ऐसे, तो गाड़ी में उतरकर उसके पास जाके और उसके लिए प्रार्थना किया और वो ठीक हो गया। अगले दिन उसको मीटिंग में बुलाया, किसी को बोला कि भाई आप इनको तैयार करके मीटिंग में लेके, वो ठीक हो गया और उसका नाम मुसाकी है। उन्होंने मेरे को एक कैसेट भेजी, उसमें उसने ये कहा, तो वो स्टेज पे बुलाए कि जब उसको देखा कि वो ठीक हो गया, चल रहा है, अच्छा कपड़े पहने हैं, अभी वो भीख नहीं मांगता, अच्छा हो गया, लगता है कि भाई जैसा वो भी एक बड़ा सांप बन गए, सर है। तो जिनको इन्होंने कहा कि, और एक आदमी को बुला के कहता, ये तो प्रभु ने किया है चमत्कार इसके जीवन में, आपको क्या कहा है? I want to receive Jesus। इसको देख के प्रभु ने इसको चंगा किया, ये चल नहीं पाता था, इसको देख के मैं भी यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार करना चाहता हूँ। मैं पहले नहीं किया। I want to receive Jesus, my savior। Jesus heals people। और मूसा को भी जो ठीक हो गया, वो भी यीशु को ग्रहण किया। जिन्होंने उनको देखा ठीक होते हुए, उन लोग भी ग्रहण किया। Yes, heal the people। Yes, pray for sick। बीमारों के लिए चंगा करो, और जो नहीं चल पाते उनको ठीक करो, अंधों के लिए प्रार्थना करो, लंगड़ों के लिए प्रार्थना करो, आप ठीक हो जाएंगे, यीशु में आएंगे। लेकिन ये सब जो है यीशु को उद्धार करता स्वीकार करने के लिए। Oh, glory to God। Jesus died on the cross। He was wounded to heal the people। He died and rose again from the dead to save sinners। पापियों को बचाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरा और मृतों में से जी उठा। యేసు క్రీస్తు శిలువ మీద ప్రాణం పెట్టింది, ఆయన తిరిగి మరణం నుండి లేచింది పాపులను రక్షించడానికి, ఆయన గాయములు పొందింది స్వస్థత పరచడానికి। హల్లెలూయా। yes, save sinners। where are you preachers? You are not preaching the gospel. Come back to the gospel, come back to Jesus to preach the gospel। preach the gospel, don't preach gossip। yes, don't preach gossip, preach the gospel। where is your priority? I see some people, not all, some preachers, some evangelists, some pastors, some preachers, they are not preaching the gospel। I did not hear since many days with their mouths preaching repent and believe Jesus। oh my God, come to Jesus and be saved। my God, how pathetic it is, how dangerous it is। my God, ये भयानक है। आत्माओं को बचाने के लिए यीशु का मकसद ये है, वो पापियों को बचाने के लिए फर्स्ट
purpose revealed in the book of Matthew chapter 1 verse 21. That angel Gabriel was speaking to Joseph. He said, Mary will give birth to a son. His name, you shall call him Jesus. Jesus means Savior. And he saves his people from their sins. उनके पापों से वो बचाएगा, इसलिए वो यीशु कहलाएगा, उद्धार करता। Hallelujah. Glory to God. Glory to God. This morning, I'm sharing these things with you. Think about it. Share this broadcast. Share this broadcast with others. Let pastors be encouraged. Let pastors be corrected. Let pastors be, touched. Yes. और लोग मेरे पास बैठे, प्रार्थना करो, ये करो, उसके लिए प्रार्थना करो, दुकान के लिए प्रार्थना करो। हम प्रार्थना करते प्रभु आशीष देता है, हम प्रार्थना करते चंगा करता है, हम प्रार्थना करते लोगों को आशीष मिलता है, बिजनेस के लिए प्रार्थना करते प्रभु आशीष देता है, आश्चर्य कर्म करता है, चमत्कार करता है, वो सब करता है। बट द मेन पर्पस ऑफ जीसस इज टू सेव सोल्स। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। कैसे करने हैं, कैसे प्रचार करूं? आप सोचते हैं मैं कई बार प्रचार करता हूं, आते नहीं है, बचते नहीं है। होली स्पिरिट विल वर्क इन देयर हार्ट्स। हालेलुया। मैं बता रहा हूं आपको, पवित्र आत्मा, आप जब बार बार प्रचार करेंगे, पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करेगा। अभी आप ये नहीं सोचना आपने इतनी बार प्रचार किया, मान लो 150 बार किसी को प्रचार किया। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव प्रीच्ड, शेयर द गॉस्पेल विद पीपल, विद समबडी more than 150 times also. Think about it. But he or she is not yet saved. अभी तक वो बचा नहीं है, 150 बार भी प्रचार किया, नहीं बचा नहीं है। But I tell you, these things you are storing up in their hearts. It's just like every time when you preach, जब कभी आप प्रचार करते हैं, हर बार एक बहुत बड़ा पत्थर को आप है ना हथौड़ा से एक बार मार रहे हैं, इतना बड़ा पहाड़ या पत्थर हो भाई, इतना उसको आप मार रहे, एक बार मारने से नहीं, लेकिन कितनी बार मारते आप देखते हैं, और 1 घंटे 2 घंटे के बाद बार मारने के बाद वो टूट जाता है। In the same manner, you need to preach first time, second time, yes, third time, preach again and again. Every time when you preach the gospel, it is like you are hitting the rock with a hammer. हथौड़ा से जो पत्थर उस चट्टान को जैसा मारते हैं, इसी तरह आप हर बार मारें। One day it will be broken. That rock will be broken. एक दिन वो चट्टान टूट जाएगा। I tell you one example. Long back, I went to Tamil Nadu, a very famous city called Madurai, with some pastor from Delhi. His father was expired at that time, so I went with him. I went to Madurai, that was South Tamil Nadu, lost. So we went there after the burial service, okay, and all the relatives came. There was one uncle of this pastor's uncle, who was also old. They said, we are all believers, we are saved now, we are believers, we are children of God, we believe Jesus. तो मैं एक बहुत सालों पहले एक पास्टर के साथ मैं तमिलनाडु गया था। तमिलनाडु में एक मदुरई नाम से एक शहर है, बहुत बड़ा शहर, और साउथ तमिलनाडु में। तो जब मैं उस पास्टर जी का पिता का देहांत हो गया, उनके साथ मैं गया। जब गया तो भीड़ थी, क्योंकि वो पास्टर जी थे, और काफी पास्टर्स आए। उनकी अंतिम संस्कार होने के बाद जब हम लोग शाम को घर आए तो रिश्तेदार सब आए, और उस पास्टर जी का एक शैडो था, जो इस पास्टर का जो अंकल। तो when so everybody was sitting there in the evening, बरियल खत्म हो गया, मेरा ख्याल उस दिन के अगले दिन याद नहीं, तब बातें कर रहे थे। सो मैं इंग्लिश में बोलता था, तो कोई किसी को इंग्लिश आता तो उससे बात करता, लेकिन मैं
the Spirit of God was speaking to me. प्रभु के आत्मा मुझे बोल रहा था कि प्रचार करो. मैंने कहा इंग्लिश में प्रचार करूंगा प्रभु, और कौन सुनेगा कैसे. तो बार बार प्रभु बोल रहा था प्रचार करो प्रचार करो. तो जब मैं प्रचार करने के लिए किसी को, एक दो आदमी को प्रचार किया, लेकिन मैंने देखा कि किसी को जो इंग्लिश आता है उसको बुलाया मैंने. So when I called one fellow who knows English, then I requested him, can you please translate from English to Tamil? He said, yes, I will. So he came. So the Lord was, the Spirit of the Lord was urging me to go to a particular man. So I sat there, and other relatives were also there, because he was also a pastor. So the Lord was telling me, leading me to so and so uncle, and I think he was smoking something like that, and the Holy Spirit was leading me. He was telling, go and talk to that fellow. So I got that man translated with me, and I went to that uncle. I think I don't know. So I began to speak to him in English, and this man, he was translating into Tamil. So I began to preach the gospel, and others, all his daughters and relatives, and they were also listening, but they were just smiling, like, I was thinking why they are smiling. I was preaching. So they said, we are all believers, we are all repentant, we are baptized. Then I did not pay attention to them, but I was preaching with great concern. So the Lord was working in me, and they were thinking, because he went to many meetings, many pastors preached to him, many times he heard the gospel, many times, but he did not receive Jesus. He was not repentant. So that's why they were thinking that, okay, let him preach, maybe. So they were listening, and they were smiling. So they were talking. After I finished my preaching, this is a miracle. On that day, the Lord spoke to me again. Preaching the gospel is the main purpose of Jesus Christ coming on the earth. Nothing else matters. Nothing else matters. You preachers, pastors, and you matured believers, listen to me. Preaching the gospel is the main purpose of Jesus. Salvation is the main purpose. Matthew chapter 1 verse 21, angel Gabriel was talking to Joseph. He said, Mary, she will give a birth to a son, and you shall name him Jesus. Jesus means the Savior, because he will save his people from sin, from their sins. When I was speaking to that uncle, he was told, listen to me. Then after I finished, I think I preached to him after 20 minutes, something like that, because somebody was translating into Tamil. So after I finished preaching, that uncle was not yet saved. He was old enough. He went to many churches. He don't bother. Many pastors met him, and he went to his people, his relatives and his daughters and all his children. They used to take him to many meetings also, but he did not receive. But on that day, after I finished, so he said, I asked him, do you want to pray with me? He said, okay. Then I lead him, to Christ. I was praying for him, a sinner's prayer. After that, he was ready to take baptism. Listen to me. This is a great miracle. Great miracle. You see, like that many I have seen, but that was in Tamil Nadu, in the city of Madurai, and the Lord was at that place. Everybody were gathered, and he accepted Jesus. And he said, I want to take baptism also. My God. And the people became serious, because relatives also there, and his children, daughters, and others also. I became, you want to take baptism? Yes. When you want, can you take baptism right now? Yes, I am ready. Then immediately, we arranged, for baptism for him to take. Then we filled the tank with water, because it was a church also. Then he came in front of all the relatives who came to attend the funeral service in the same place. All the relatives, in front of all the relatives, this old man, he was immersed into waters of the baptism. He took baptism. My God, I
did not give, and I told this pastor who came from Delhi, so he gave baptism. I was so happy, and I tell you, more than I was happy, all his his people, his house people, his relatives, everybody, they came to me, they were talking to me, they were like, oh, how many times we preached, how many times we saved the gospel, I shared with him, he did not listen, this and that. Oh, I said, glory to God. Hallelujah. And I heard recently, I think some 2-3 years back, he was promoted to glory. वो मर गया, लेकिन वो स्वर्ग में गया. Hallelujah. 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 I was so happy. I cannot forget that part. Hallelujah. I've seen miracles. I've seen healings. When I prayed over the telephone, dead body got alive. Hallelujah. I've seen people walking. I've seen people, receiving miracles. Yes. When I prayed, people saw when they were not seeing. Many miracles, all kinds of. Hallelujah. But the purpose of Jesus came into this earth is to save sinners. Hallelujah. So this morning I am saying these things. Don't get upset. आपको निराश नहीं होना है, आपको उदास नहीं होना है. आपके बच्चों को, आपके घर वालों को, आपके आसपास के लोग, जिन किसी को भी आप प्रचार करेंगे, परमेश्वर की आत्मा प्रचार करेगा, उनके जीवन में कार्य करेगा. आप आश्चर्य कर्म देखेंगे. हालेलुया.